इस बेटा हम लोगों ने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ ही लिया था. Yes, sir. And in this Bohr model of atom, we have discussed what? The energy level of electron in various orbits. Energy of electron in various orbits. बेटा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन की केवल बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑर्बिट जेड तो 1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 का स्क्वायर 13.6. सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे -3.14. थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 का स्क्वायर तो यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे -1. फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी 4 का स्क्वायर 16 0.85. फिफ्थ ऑर्बिट में तो जेड तो 1 ही होगा बेटा हाइड्रोजन ही है. तो ये एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट में जब फिफ्थ का 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इसको डिवाइड किया तो इतना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. बेटा दिस इज हायर एनर्जी लेवल एंड दिस इज लोअर. Our question is how much energy is required to move electron from n is equal to 1 first orbit to n is equal to fifth orbit. बेटा फर्स्ट से फिफ्थ में भेजना है तो हायर एनर्जी लेवल इज 5 and lower energy level is first because the value is more in negative minus the magnitude is minus 13.6 is more than 0.54. This is more value but since this is negative sign so more be the negative lesser value will be this. So this is lower energy level. This is higher, again more higher, again more energy. So this is higher energy level. This is higher energy level. This is lower energy level. So how we can solve? How much energy required to shift electron? Whatever be the delta is the energy required. Whatever be the energy of electron in fifth orbit minus energy of electron in first orbit. Equivalent amount of energy we have to supply from outside and this is equals to difference between the fifth energy level and second energy level. If our question would be how much energy required to shift an electron from second orbit to fourth orbit, so beta which one is the higher energy level? 4 minus second. But here the question is how much energy required to shift electron from first orbit to fifth. So this is the higher energy level minus lower energy level. But इसमें वैल्यू ये पुट कीजिए क्या पुट करेंगे बेटा -13.6. जेड तो बेटा हाइड्रोजन के लिए 1 ही होता है बाय फिफ्थ ऑर्बिट माइनस energy of first orbit, energy of electron in first orbit. Minus 13.6 into Z की value 1 and orbit number is 1. This is energy in electron volt. Beta, now this one is clear or not? Beta, what is the energy level of fifth orbit? 25 से डिवाइड किया 0.54 minus 0.54. बेटा माइनस माइनस प्लस ऑर्बिट की एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा कितना हो गया 13.6 minus 0.54. Put here 0 like this. 6, 0. 13.06. 13.06.
0.6 positive amount of energy will be required in electron volt. This amount of energy, but 13.06 electron volt energy required to shift electron. Yes, sir. But beta, if the question will be given like this, Yes, sir. that what is the frequency of light required? What is the frequency of light required to shift this electron from lower orbit to up? बेटा क्योंकि हम तो खुद अपनी हाथ से तो फेंक नहीं सकते इतना छोटा इलेक्ट्रॉन। बेटा इस शिफ्टिंग के लिए हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं। We use what? Light radiation to shift this electron. When we incident light over any atom, the electron in lower energy states absorb this energy and moves to their higher energy level. Yes, sir. Moves to higher energy level. तो बेटा अगर ये बात बोली जाए कि ये हमारा क्वेश्चन है कितना लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं करेंगे, हमें इसके लिए ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज जूल वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ कैसे चेंज करेंगे बेटा? बेटा जल्दी बताइए कैसे चेंज करेंगे इसे? एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 13.6 13.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। देखिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी? 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल। बेटा एनर्जी अब जूल में कन्वर्ट हो गई। अब आप आसानी से इसे डेल्टा ई की जगह एच न्यू लिख सकते हैं। बेटा कोई भी लाइट की एनर्जी एच प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। एच क्या होता है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ Planck constant. But energy required in the form of light. So energy of any photons of any light. Photons is what? Packets of energy. Photons is what? Packets of energy. And it depends on frequency. It depends on frequency. Frequency is in a number of vibrations per second of any wave. So more be the frequency, more will be the energy. But a Planck, what is Planck constant? प्लैंक कांस्टेंट क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। होता क्या है बेटा? अगर हम लाइट की एक साइकिल को देख लें बेटा, देखिए जैसे कि एक्सरे होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा? 10 टू द पावर 18, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेटा गामा रे की देखिए तो फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 21 तक जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो गामा रेडिएशन में ज्यादा एनर्जी। एच होता है बेटा एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन साइकिल ऑफ वेव, लाइट वेव्स। तो बेटा 2 साइकिल के साथ कितनी एनर्जी होगी? इनटू 2। अगर किसी लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी 3 हो तो एनर्जी होगी 3, और न्यू हो तो h इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकेंड। अब देखिए बेटा ये क्या है? अभी देखिए फ्रीक्वेंसी निकालना है। यस बेटा। सर प्लैंक कांस्टेंट की तो सिर्फ प्लैंक कांस्टेंट की नो सी बेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये प्लैंक कांस्टेंट नीचे चलाएगा 13.02 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon h 6.6 10 to the power minus 34। बेटा इस माइनस 34 को ऊपर ले जा सकते हैं, 10 to the power 34 लिख सकते हैं। 10 to the power 34 minus 19 क्या हो जाएगा बेटा? 10 to the power 15, 10 to the power 15। जब आप इसे डिवाइड कर दें तो हार्डली 2 के
अराउंड 2 into 1 यानी कि 3 point something, ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा? अराउंड 3 point something into 10 to the power 15 hertz. And this is the frequency of ultraviolet rays. Beta 3 into 10 power 15 hertz frequency. This is around frequency of ultraviolet rays. Ultraviolet rays की frequency इतनी होती है. Are you getting? So how we have here, when the value of energy of electron is given in electron volt, and you are asked to determine the frequency of light required, you first change this energy in SI system. Joule. Energy in joule. कैसे चेंज करें? आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 into 10 power minus 19. क्यों बेटा? 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है. 1 electron volt means this joule. बेटा ये आ गया. E is equals to h nu. E is equals to this and frequency of light in this. Beta, if you are asked to determine the wavelength of this light, now you know frequency is equals to what? Velocity by wavelength. Frequency is equals to velocity of light. What is the formula for frequency? Velocity by wavelength. 15 hertz. बेटा अगर आपको आता है वेवलेंथ निकालने, आप जानते हैं लाइट की वेलोसिटी होती है बेटा 3 into 10 to the power 8. आपने निकाल दिया है वेवलेंथ बेटा लैम्डा. 3 से 3 काटिए, लैम्डा इधर ले जाइए, ये तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 to the power 8. और ये नीचे चलाएगा बेटा. जब ये ऊपर जाएगा तो 8 minus 15, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 7 meter. Minus 7 meter. 10 to the power minus 7 meter. This is the wavelength of the light required. And this is the frequency of the light required. So in this way, we can calculate either the frequency will be asked or wavelength will be asked. We can calculate both. But for that one, we have to first convert electron volt into joule. Electron volt into joule. With light, the energy of light is h nu. H Planck constant, nu frequency. So therefore h is a. What is this? You know the value of h is this 6.63 into 10 power minus 34. But a frequency is equal to upon h. You cut this, you get the frequency. And if again velocity will be asked, that no, if wavelength of light will be asked, that how much wavelength of the light required? What is the wavelength of the light required to shift this electron from first orbit to fifth orbit? Now, you know frequency is equal to velocity of light by wavelength. What is the velocity of light? 3 into 10 power 8 meter per second by wavelength. Lambda come this side, 3 cut. Upon 15, 10 power minus 15. Lambda is equal to 10 to the power minus 7 meter. Now, use here. बेटा अब देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे. एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रम किसी की तस्वीर. एटम की तस्वीर कैसे देखते हैं बेटा? कोई अंधेरे में जा रहा है, जिस मानिए कोई चोर भाग रहा है, उसे देखना हो कहां भाग रहा है भाई, तो हम क्या करते हैं? लाइट जलाते, चारों ओर से टॉर्च मारते हैं उस पर. कहां भाई अंधेरे में भाग रहा है. जब उस पर पड़ता है तब तो वो दिखता है. अब बोल रहे हैं हाँ यहां भाग रहा है, और लाइट ही नहीं पड़ता तो अंधेरे में हमें कैसे दिखेगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि हम उसे देखते कैसे हैं? एटम की तस्वीर दिखती कैसे है हमें?
कि कैसे हमने प्रेडिक्ट किया हुआ ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं सबसे लोग ऐसे, ये कैसे देख? माइक्रोस्कोप। नहीं नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप तो केवल ऑर्गेनिज्म को देखता है बेटा। एक बैक्टीरिया को देख लिया, एक आरबीसी को भी देख लिया, वो भी उतनी अच्छी से नहीं, धुंधला दिखेगा माइक्रोस्कोप से। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑर्गेनिज्म को देख सकते, लेकिन एक एटम के अंदर की तस्वीर देखने के लिए हम लाइट रेडिएशंस का यूज करते हैं, उस एटम पर लाइट को डालते हैं, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एमिट एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। कब तक रहेंगे भाई, कब तक रहेंगे? हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आना ही है, क्योंकि वहां उसे सबसे ज्यादा सुख शांति मिलती है। बच्चा थोड़ी देर के लिए भाग जाता है घर, उसकी थोड़ा एनर्जी बढ़ जाती है, तो ऐसा थोड़े है शाम को फिर लौट करके आता है। क्यों आता है? क्योंकि जानता है कि मैं घर में सेफ, वहां एनर्जी मिनिमम है, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हमें सब कुछ मिलेगा। तो everybody wants to minimize their potential energy, and that's why everybody moves under attraction. बेटा कोई भी नेचर में, कोई भी बॉडी पर्सन में नहीं रहना चाहता, वो हमेशा अट्रैक्शन की ओर भागता है। बेटा ये सीधा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा। अगर ये बताइए बेटा, जब वो वापस आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था उसको दोबारा वो एमिट करेगा, and by studying the series of wavelength of light emitted by this atom, we predict the structure of atom, we predict the energy level or different energy levels, different orbit, different सबसेल की एनर्जी लेवल्स को हम प्रिडिक्ट करते हैं। कहने का मतलब लाइट के हेल्प से हम एटम की तस्वीर को देख पाते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है। बेटा आंख से किसी ने नहीं देखा एटम को कि एटम ऐसी होती है, नहीं। बाय द हेल्प ऑफ absorption spectrum or emission spectrum, and this is what emission, when we are incident, when we are just incident light radiation over this atom, the electron excited to higher energy levels, and when this excited electron falls back to their lower energy states, they emit radiation in the form of different series of wavelength of light. They are known as atomic spectrum. So beta, let's see here, atomic spectrum. एटॉमिक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, these are the series of lines, these are the series of lines, series of lines emitted by the transition of electron, by the transition of electron, transition of electron from higher to lower orbit, from higher to lower orbit. अभी देखिए बेटा, जैसे हायर एनर्जी स्टेट्स कितनी एनर्जी निकलेगी, अभी मैंने आपको बताया था। हायर एनर्जी कितनी एनर्जी निकलेगी बेटा, हायर एनर्जी स्टेट्स कौन सा होता है, हायर एनर्जी लेवल, ये इसे बोलेंगे ई ऑफ इनिशियल एनर्जी स्टेट्स, जो हायर एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी माइनस यहां से ये कहां आएगा, फाइनल, लोअर ऑर्बिट्स को फाइनल कहेंगे। इतने के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बेटा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अभी मैं लिख रहा हूं उसे, बेटा जल्दी बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एनर्जी स्टेट,
-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m e⁴ इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये होता है बेटा। बेटा ये इनिशियल, तो एन इनिशियल लिखेंगे। फाइनल का क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल में फिर यही स्टार्ट करेंगे कहानी। क्या लिखेंगे? फाइनल की एनर्जी, फाइनल की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस माइनस फाइनल, फाइनल की एनर्जी ये सारा सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴ अपॉन h इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। अब ये देखिए बेटा, ये सारा कॉमन, ये टर्म दोनों में कॉमन है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस। तो इसे पहले लिख दिया जाए, ये आप कॉमन लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m e⁴। जेड क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का 1/h। बेटा ये क्या हो जाएगा? एन फाइनल का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। बेटा जो एनर्जी रिलीज होता है वो किसके फॉर्म में रिलीज होता है बेटा? जो एनर्जी रिलीज होता है वो hc अपॉन वेवलेंथ। अब हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। बेटा फॉर्मूला भी बताया था, h न्यू और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? c बाई लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। h न्यू को ही हमने लिखा न्यू की जगह c बाई लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट। बेटा आपको मालूम है, यू नो अबाउट दिस वन ना? हाँ, तो बेटा ये छोड़ दीजिए, 1/λ केवल छोड़िए, बाकी एसी को इधर लेके आइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m e⁴ अपॉन h इधर आ गया बेटा, h स्क्वायर। बेटा ये ना h स्क्वायर होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा बेटा। ये आ जाए, जब ये आ जाएगा h⁴ हो जाएगा। बेटा इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट। बेटा इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर 1/λ। बेटा 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं? वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर। अभी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ये पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 10⁻⁷। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? पर मीटर, पर मीटर। रेडबर्ग कांस्टेंट बेटा पर मीटर कैसे यूनिट हो गया? बेटा लैम्डा तो वेवलेंथ होता है ना। लैम्डा क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या हो गई बेटा? जैसे यूनिट आपको निकालने गया 1/मीटर। वेवलेंथ ऐसा यूनिट क्या होते हैं बेटा? मीटर। आर की यूनिट निकालनी है बेटा, आर। बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिट का तो कोई फॉर्मूला नहीं, 1 2 3 4 कोई यूनिट नहीं होती है। तो आर की यूनिट क्या हो गई बेटा? मीटर। ऊपर चला गया, पर मीटर, पर मीटर। बेटा ये इसकी यूनिट होती है 1। 10 पावर से लगभग 1 करोड़ होता है। 1.01 इंटू 10⁻⁷ यानी कि लगभग 1 करोड़। इसको 1 करना है। 1 कैसे किया जाए अब मैं बताता हूं।
पर मीटर का मतलब 1 मीटर लंबाई में, पर मीटर में 1 मीटर लंबाई में कितने नंबर ऑफ वेव बनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? 1 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग उसके करीब जो वेव बनते हैं। कब? जब बेटा सबसे बाहरी ऑर्बिट से, देखिए इधर न्यूक्लियस है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इन्फिनिटी ऑर्बिट से आता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में। ये फासला सबसे ज्यादा हो जा रहा है, इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो इनिशियल कहां से आ रहा है बेटा? इनिशियल कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी से कहां आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। फाइनल कहां आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। व्हाट इज एंड फाइनल? बड़ा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आ रहा है? हायर से लोअर कौन सी ऑर्बिट में आ रहा है? दैट इज फाइनल, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये 1/λ की वैल्यू लिखेंगे r इंटू 1/1 कहां से आ रहा है बेटा? इन्फिनिटली, बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 एंड 1/1 दैट इज 1। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r। तो 1/λ is how many number of wave form in 1 meter? That is this number. तो बेटा जब हाइड्रोजन एटम में सबसे छोटा वेवलेंथ निकलेगा, सबसे छोटा वेवलेंथ कब निकलेगा? जब सबसे ज्यादा एनर्जी फॉल होगी। और सबसे ज्यादा एनर्जी कब एमिट होगी? when the electron shift from infinity orbit to first orbit, infinity orbit to first orbit. बेटा बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन series is the series of wavelength of light emitted when the electron shift from higher orbit to first orbit. बेटा ये उसे एक पहले से गिर सकता है, उसे एक पहले से, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में ही आना है सबको। कहाँ आना है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तब इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं। अब देखिए बेटा, अभी पढ़ेंगे डिफरेंट सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। बेटा you have already understood this equation. Now we are using this equation. बेटा कितनी बात आपको सब? अब देखिए बेटा, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज। फर्स्ट बेटा बोलेंगे लाइमन सीरीज। विच वन? लाइमन, लाइमन सीरीज। बेटा इस सीरीज में उन वेवलेंथ को हम लेते हैं जो सबसे छोटे वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। और सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होती है? जब एन फाइनल क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट होता है, यानी कि बाहरी किसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आता है बेटा। और बाहर कहां से आ सकता है? इनिशियली कहां से आ सकता है? इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? यहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आना है। तो बाहर कहां से आ सकता है बेटा? सेकेंड से आ सकता है फर्स्ट में, सेकेंड से आ सकता है फर्स्ट में, थर्ड से आ सकता है फर्स्ट में, फोर्थ से भी आ सकता है फर्स्ट में, ये भी लाइमन सीरीज काउंट होता है। फिफ्थ से भी आ सकता है, यानी कि बाहर कहीं से भी आ सकता है। तो लाइमन सीरीज का अगर बात करेंगे बेटा, मिनिमम वेवलेंथ सीरीज, लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ बेटा आप जानते ही इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। बेटा लैम्डा जितना छोटा उतनी ज्यादा एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब एमिट होगी? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी ऑर्बिट से फर्स्ट में आएगा, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। तो उसे लिखेंगे आर इंटू 1 बेटा फाइनल कहाँ आया? फर्स्ट ऑर्बिट में आया। कहां से आएगा बेटा? इन्फिनिटी ऑर्बिट से आएगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू आर इंटू समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 1/1 square 1, this is equals to r. Therefore lambda minimum, what is this value? Lambda minimum is equals to 1/r, 1/r.
हाँ, ठीक है। बेटा ये वैल्यू किसमें होती है? मीटर में। अब देखिए बेटा 3 डिजिट मीटर में। ले जाइए पॉइंट को, 3 डिजिट राइट ले गए तो इसमें 3 पावर लेफ्ट। बेटा 7 के लेफ्ट कौन होता है? -8, -9, -10। 3 डिजिट 1 2 3 क्या हो जाएगा बेटा? 911 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। बेटा -10 मीटर को लिखते हैं एंगस्ट्रम। क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रम। 911 एंगस्ट्रम एमिट होगा मिनिमम वेवलेंथ। 911। अब ये बेटा आपको याद रखना है। अब आगे कहानी आसान हो गई। बेटा अगर बोलेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, तो मैक्सिमम कब एमिट होगा बेटा? लाइमन सीरीज फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन बाहर और कहीं से नहीं, ना थर्ड से ना फोर्थ से। बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ तब होगा जब एनर्जी मिनिमम होगा, और ये एनर्जी मिनिमम कब होगा? जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा। बेटा एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम, तो ये कौन सी ऑर्बिट में आएगा? बेटा कौन सी ऑर्बिट से आया? सेकंड से आया। मैक्सिमम में कब आएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा? जब ये अपने से ऑर्बिट ऊपर से आएगा। तो बेटा ये क्या हो गया? आप इससे सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4। बेटा ये 4 - 1 3r/4। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3r/4। 3r/4। 1/λ की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1/λ मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 3/4। लैम्डा मिनिमम क्या हो गया बेटा? लैम्डा मिनिमम हो गया 4/3। 4/3r। 1/r की वैल्यू क्या है बेटा? 1/r की वैल्यू है दिस। यानी कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है? मैक्सिमम निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 1/r की वैल्यू कितनी आई? 911 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बेटा? बेटा 4/3 से बस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1/r की वैल्यू कितनी है बेटा? 911 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखनी है। जो मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय एनी हाइड्रोजन एटम 911, और मैक्सिमम वेवलेंथ तो कुछ भी हो सकती है बेटा। मिनिमम वेवलेंथ ये होगा। अब ये देखिए आगे, दिस इज व्हाट लाइमन सीरीज। सेकेंड बात करते हैं, बामर सीरीज की बात करते हैं। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है, फाइनल सेकेंड ऑर्बिट में आता है। बाहर कहां से बेटा? थर्ड से सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में आता सकता है, फिफ्थ से आ सकता है। तो सेकंड के बजाय थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से, फिफ्थ से, बाहर कहीं से भी आ सकता है। तो बेटा यहां लैम्डा अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो सेकंड में आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा? थर्ड से। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 स्क्वायर 4 और 3 3 जा 9। दोनों का एलसीएम बताइए बेटा? 36। 4 9 जा 4 9 4 जा बेटा 5/36। यहां क्या लिखेंगे बेटा? बामर सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा? 5/36। 5/36। तो लैम्डा में मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, व्हाट इज द लैम्डा मैक्सिमम? 1/r into 36/5. 36/5. मैक्सिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज। बेटा मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा? तो ये कहां से आएगा बेटा? सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस जब इंफिनिटी से आएगा, या इंफिनिटी कर देंगे, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, r/4। r/, क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4।
बाई 4, ये क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा मैक्सिमम 4 इंटू 1/r, 4 टाइम्स मिनिमम। ये क्या है बेटा, मिनिमम। मिनिमम बेटा सारी मिनिमम केस हम लोग पढ़ रहे हैं, मिनिमम एंड देन मैक्सिमम। अब बेटा लाइमन के बाद बामर जब सेकंड ऑर्बिट में आए बाहर कहीं से, वो बामर सीरीज कहलाता है। बेटा लाइमन सीरीज क्या कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर किसी ऑर्बिट से फर्स्ट में आए। बामर क्या कहलाता है, बाहरी किसी ऑर्बिट से सेकंड में आए। पाश्चन किसे कहते हैं, बाहरी किसी ऑर्बिट से थर्ड में आए, और थर्ड में कहां से आएगा, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है। उसके बाद आता है ब्रैकेट, किस ऑर्बिट में आएगा बेटा, फर्स्ट फोर्थ ऑर्बिट में आएगा, तो कहां से आएगा बेटा, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, सेवन से आ सकता है, एट से। सिमिलरली वी कैन चेंज दिस वन। उसके बाद अब सीरीज, ये किस ऑर्बिट में आएगा बेटा, फिफ्थ ऑर्बिट में आएगा। बाहरी कहां से आएगा बेटा, सिक्स से आ सकता है, सेवन से आ सकता है, एट से, बाहर कहीं से भी आ सकता है। नाउ बेटा हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? कम से कम आपको ये बातें समझ आए हो गई कि लाइमन सीरीज किसे कहते हैं, बामर सीरीज किसे कहते हैं, पास्टन सीरीज क्या होता है, ब्रैकेट क्या होता है, पीफन सीरीज क्या होती है। बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे।